today's topic is cast iron, which is being the second part for the unit number 3. So cast iron is what? It is a alloy of iron contains 2 to 6.67% of carbon along with various alloying elements of such as silicon, manganese जो है वहाँ पे ऐड होता है. The main percentage of iron is from 2 to 6.67% में परसेंटेज में जो है वहाँ पे वो अवेलेबल रहता है. That is what the cast iron is. तो यहाँ आपको जो है यहाँ ध्यान इसमें देना है. So automatically, high percentage of carbon is being responsible to create cast iron as a brittle, and most commercially manufactured type of the cast iron are in the ranges from 2 to 4%, 2 to 5% या 4% के हिसाब से जो है cast iron यहाँ पे manufactured होता है. Basically, I will just repeat, cast iron is containing iron from the range of 2 to 6.67% के हिसाब से वहाँ पे जो है cast iron mention है. और major alloying element in cast iron is silicon and manganese. High carbon content tends to make cast iron as a iron brittle, and most commercially manufactured जो cast iron जो रहता है, that is most important rule वहाँ पे use उसमें होता है. Next is, however, they melt rapidly and can be cast into complex shapes which are usually machined into final dimension. ये जो है melt rapidly होता है और it can be shaped into various dimension complex shapes. और इसके हिसाब से cast iron cannot be forged, rolled, drawn or work at room temperature. तो cast iron का ये problem है कि it can't be work at a room temperature for the operations like rolled, forged, drawn or cold work. तो टेम्परेचर जो है लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर जो रहेगा कास्ट आयरन के रिगार्डिंग, इट विल बी फ्रॉम द रेंजेस ऑफ 1150 डिग्री सेल्सियस टू 1250 डिग्री सेल्सियस के दौरान जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा एज कम्पेयर टू स्टील. स्टील जो है, स्टील का जो मेल्टिंग टेम्परेचर जो जोन रहता है, दैट इज इन द रेंजेस ऑफ 1350 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है स्टील मेल्ट होता है. बट एज कम्पेयर टू स्टील, आयरन इज बीइंग गेटिंग मेल्टेड in the ranges of 1150 degrees Celsius to 1250 degrees Celsius, and wide range of properties depends on composition and what kind of cooling rate is imposed on the cast iron. That is the important property and which will be useful for defining what kind of properties that cast iron will inculcate. Then second is, the making of cast iron begins with combination of raw materials. Iron is rarely found in pure form, so the iron is used for various centuries is found in the combination of iron and other elements. This combination are known as iron oxide. तो मतलब सिंपल है, आयन ऑक्साइड की से जो है कास्ट आयन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है. प्योर फॉर्म में आयन जो है नेचर में उपलब्ध नहीं है. दैट इज बीइंग गेटिंग प्रोसेस्ड एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम iron oxide. That is the important thing that we have to study. The iron ore is firstly taken, then converted into various types of iron. But first it is processed in the blast furnace to produce pig iron. और उसके हिसाब से pig ions are has very few uses due to brittle in nature. Brittle nature के हिसाब से pig iron को जो है automatically very few नहीं है. So allied with other elements, pig iron takes new uses. The term cast iron is generally described grey cast iron, but it is also described whole group of alloy of any. तो इसमें जो है other alloying element जिस तरीके से वहाँ पे ऐड हो गए, depending on that the type of cast iron will be there. तो पहले आयन ऑक्साइड से जो एक्सट्रैक्ट होता है that is called as a pig iron. Pig iron इतना यूजफुल नहीं है because it is brittle in nature, and that's why automatically उसका जो लिमिटेशन है वहाँ पे आ जाता है. और ऑब्वियसली एक पॉइंट जो हमने बताया था कि ये जो आयन है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर that is manufactured in the blast furnace. That's why it is called as a gray cast iron. So obviously the surface मतलब कलर, surface का कलर क्या रहेगा उसके हिसाब से cast iron का जो क्लास है that will be defined for the classification for that cast iron. आपको ये यहाँ पे ध्यान में देना है.
तो एडवांटेजेस क्या है कास्ट आयरन के एज कंपेयर टू वो स्टील? तो वहां पे कास्ट आयरन इज चीपर देन स्टील, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन स्टील, जहां जैसे यहाँ पे हमने देखा है इट इज गुड कास्टेबिलिटी देन स्टील, इट इज हैज गुड डैम्पिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू स्टील, एंड कास्ट आयरन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन स्टील, दैट इज लास्ट वीक पॉइंट ऑफ द कास्ट आयरन। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि चीपर है, मेल्टिंग पॉइंट लोअर है, कास्टिंग एबिलिटी है, डैम्पिंग कैपेसिटी ज्यादा है और स्ट्रॉन्गर है। डैम्पिंग कैपेसिटी का मतलब है एक पैरामीटर आप जो देख रहे हो यहाँ पे, डैम्पिंग कैपेसिटी मतलब द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक। जब जहाँ पे शॉक के एप्लीकेशन में कास्ट आयरन का यूज होता है तो उस केस में जो है कास्ट आयरन की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक इज मोर एज कम्पेयर टू स्टील। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, सी आई डिफर्स फ्रॉम द स्टील इन द फॉलोइंग मैनर बिकॉज ऑफ हाई कार्बन कंटेंट, जैसे वहां पे बताया है कि 2 to 6.67% के हिसाब से गुड कास्टेबिलिटी है, लेस डक्टिलिटी है, कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन इज मोर इन देन ऑस्टेनेटिक आयरन, carbon in content in cementite, low ductility, cannot be forced, rolled, drawn into wires or press at room temperature, but it can be cast और complex shape में वो cast हो जाता है। तो दो टाइप के हैं वहां पे, फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल के टेरिटरी में कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील जो है वो आता है। नॉन फेरस के मेटल में एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो सिंपल आता है। दिस आर द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन दैट हैज बीन मेंशन हियर एंड यू हैव टू गो विद सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वंस अगेन। नेक्स्ट इज, तो वहां पे रॉ मटेरियल्स लाइक पिग कास्ट आयरन का, स्क्रैप कास्ट आयरन स्टील, scrap, ferrosilicon, silicon ore, limestone, coke, etc. are being used to manufacture cast iron. It is cheapest among all, low melting point hai, corrosion resistance is fairly good. Due to high fluidity, it can be easily cast into complex shape. Heat treatment and altering composition changes its properties, and hence it is helpful for various application, and it provides good damping to compressive stresses. मतलब जो compressive stresses जब क्रिएट होते हैं तो उस केस के लिए कास्ट आयरन की जो कैरेक्टरिस्टिक है that is being important, and raw material जो use होता है in order to manufacture cast iron is being pig, cast scrap, steel scrap, ferrosilicon, iron ore, limestone जो है etc. are being used to manufacture the cast iron in various furnaces, जहाँ पे हम कपोला या ब्लास्ट फर्नेसेस भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? इफ यस प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। Okay, we'll move further. So what is the comparison between cast iron? तो composition of steel में 2 up to 2% carbon रहता है, but in cast iron it is the range of 2 to 6.67% max. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है 1340 से 1440, लो कास्टेबिलिटी है, हाई करोजन रेजिस्टेंस है, गुड हार्डनेस टू स्ट्रेंथ रेशियो है, यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट है, एक्सलेंट कास्टेबिलिटी है और गुड करोजन रेजिस्टेंस है। एप्लीकेशंस के हिसाब से क्रैंकशाफ्ट, गियर्स, एक्सिल्स, कटिंग टूल्स, डाइज, हीट एक्सचेंजर्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, गैस बर्नर में ये यूज होता है। whereas cast iron is being used in the pipe fittings, valves, farm equipment, crankshafts, gears, axle, dies and castings में जो है cast iron यहाँ पे डिफाइन होता है। जब भी आपको कोई कंपैरिजन it is being asked, you have to just compare it on the basis of this kind of parameters, composition properties and application, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट जो है मेंशन करना है। तो how cast iron is being manufactured from that thing? तो यहाँ पे आयरन ओर रहता है, दैट आयरन ओर इज बीइंग इनपुटेड इन द ब्लास्ट फर्नेस एंड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस द प्रोडक्ट इज हैज बीन पिग आयरन। तो पिग आयरन यदि स्मेल्टेड होता है, हैमर्ड होता है, रीहीटेड होता है, रोल्ड होता है, देन दैट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ कास्ट आयरन इज बीइंग कॉल्ड एज अ रॉट आयरन। Next one is a remelted or poured into sand molds. It is called as a cast iron. And if it is being smelted or alloyed and rolled, then it is called as a mild iron or steel. उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो है from iron ore, that hierarchy is just showing it is iron ore is being inputted into blast furnace. From blast furnace, product is being taken as a pig iron. If that pig iron is further being processed, if it is being smelted, hammered, reheated and rolled, then we are getting wrought iron, and if it is
is remelted, pour into sand mold, then it's called as cast iron, and if it is melted, hollowed and rolled, then it is called as a mild iron या स्टील हम उसको बोल सकते हैं। तो जो वेरियस कैटेगरीज है कास्ट आयन की, तो उसमें हम यहाँ पे देखेंगे व्हाइट कास्ट आयन है, मैलेबल कास्ट आयन है, ग्रे कास्ट आयन है, नॉड्यूलर या डक्टाइल कास्ट आयन है, मॉर्टल कास्ट आयन है, चिल्ड कास्ट आयन है, कॉम्पैक्टेड ग्राफाइट कास्ट आयन है, हाई अलर्ट ग्राफाइट कास्ट आयन। तो उसका जो डिफरेंशिएशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो व्हाइट कास्ट आयन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो the white cast iron is shows the white fracture surface due to presence of cemented phase। जो white cast iron को white क्यों बोला जाता है? Because the structure or surface of that cast iron is white in phase because cementite is present on the outer surface and it is very hard, which is containing 6.6% 7% of cementite with lower silicon content। उसमें सिलिकॉन जो है वहां पे मेंशन रहता है, as well as it is having faster cooling rate। The carbon in white cast iron precipitates out of the melt and its metastable phase of cementite Fe3C rather than graphite। तो आपको white cast iron का जो नाम है, जब भी आप white cast iron के बारे में जब डिस्कस करोगे, फर्स्ट वन यू विल जस्ट सी व्हाइट कास्ट आयन। तो व्हाइट कास्ट आयन को क्यों व्हाइट सीआई कहा जाता है? बिकॉज इट इज हैविंग व्हाइट सरफेस फ्रैक्चर सरफेस बिकॉज ऑन द दैट फेज इज ऑफ सीमेंटाइड और उसमें स्मॉल स्ट्रेसेस ऑफ सीमेंट सिलिकॉन वहां पे रहता है। कार्बन जो है वो व्हाइट फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट होता है और मेटास्टेबल फेज जो है वो Fe3C का वहां पे उपलब्ध है। Cementite, which precipitates from the melts, forms relatively large particles, as usually in the eutectic mixture, where other phases of austenite. White cast iron is too brittle and for use of many structural components, but good hardness and abrasion resistance and relatively low cost। That's why this white cast iron जो है वहाँ पे use होता है। तो कार्बन कंटेंट इन व्हाइट कास्ट आयरन इज 6.67% का कार्बन वहाँ पे कंटेंट वहां पे होता है। नेक्स्ट इज मैलेबल कास्ट आयरन। मैलेबल कास्ट आयरन में जो है दोस्तों, वी आर जस्ट ब्रॉडली सीइंग ऑल द टाइप्स। यहाँ पे जैसे हमने रॉट और कास्ट आयरन या माइल आयरन जो देखा था उसके हिसाब से हम बाकी वाले जो है वो देखेंगे। तो मैलेबल कास्ट आयरन में जो है मोस्ट ऑफ ऑल कार्बन कंटेंट इज अनकम्बाइंड फॉर्म ऑफ इरेगुलर राउंड पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एज अनटेम्पर्ड कार्बन जो है मैलेबल कास्ट आयरन में वहां पे उपलब्ध है। अनटेम्पर्ड कार्बन उसको कहा जाता है और उसके हिसाब से ही उसको जो है मैलेबल कास्ट आयरन जो है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट इज ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन इज व्हाट? ग्रेफाइट फ्लेक्स ग्रे कास्ट आयरन में वहां पे उपलब्ध रहते हैं, इसलिए उसको ग्रे कास्ट आयरन वहां पे बोलते हैं। आई विल जस्ट यूज द शॉर्ट फॉर्म ग्रे सीआई। ग्रेफाइट फ्लेक्स आर बीइंग existing there in the gray cast iron and by the matrix of either परलाइटिक और फेराइटिक। ये ग्रेफाइट जो है आइदर मिक्सचर ऑफ परलाइटिक और फेराइटिक होता है। इट exhibits in the gray in structure on due to the fracture occurring on the graphite plates, or the carbon content is in the form of free carbon in the gray cast iron। The fracture appearance is in gray in color। Due to this is called as a gray cast iron। जो ग्रेफाइट के फ्लेक्स है और जो सरफेस का जो कलर है ग्रे है, इसलिए इसको ग्रे कास्ट आयरन कहा जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रे कास्ट आयरन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मैट्रिक्स एंड साइज एंड शेप ऑफ द ग्रेफाइट फ्लेक्स ऑन इट। तो ग्रे कास्ट आयरन इज द मोस्ट वर्सेटाइल फॉर ऑल फाउंड्री एप्लीकेशंस एंड द हाई कार्बन कंटेंट इज बीइंग रिस्पांसिबल फॉर ईज ऑफ मेल्टिंग एंड कास्टिंग इन द फाउंड्रिंग इंडस्ट्री। तो ग्रे कास्ट आयरन का जो यूज है, एप्लीकेशन है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर फोर्जिंग इंडस्ट्री में जो है ग्रे कास्ट आयरन को जो है यूज करा जाता है। The relationship between all carbon content in the gray cast iron other than combined with iron to form perlitic matrix is the present in the gray cast iron, which forms the various flakes with different varying size and shapes। So it is the presence of flakes form solidification which characterize the ग्रे कास्ट आयरन। तो ऑटोमेटिकली जो फ्लेक्स का साइज रहेगा, जो फ्लेक्स रहेंगे ग्रे कास्ट आयरन में, दैट विल बी रिस्पांसिबल टू क्रिएट दैट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज नॉडुलर कास्ट आयरन।
नॉडुलर कास्ट आयन इज द नेक्स्ट कैटेगरी। नॉडुलर कास्ट आयन में अभी हम देखेंगे कि वहां पे क्यों उसको नॉडुलर या स्पेरोइडल कास्ट आयन उसको क्यों कहा जाता है। तो spheroidal cast iron is a type of cast iron, also called as nodular cast iron or spheroidal cast iron. In ordinary gray cast iron, iron graphite is present as a form of flakes, which tends to have shape, edge, trims. In spheroid cast iron, graphite flakes are replaced by the spheroids. यहाँ पे जो ग्रे कास्ट आयन में जो फ्लेक्स रहता है, यदि फ्लेक्स का जो सिंबल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ इस तरीके से रहता है। बट नॉडुलर कास्ट आयन में जो है जो कार्बन के जो शेप रहेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ स्फेरॉइड्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज nodular cast iron या ductile cast iron या spheroidal cast iron. The formation of this spheroidal graphite is affected by adding small amount of cerium or magnesium to the molten iron just before the casting. Since the both of these elements having strong carbide forming tendency, if the silicon content in iron must be in the ranges of 2.5%. मतलब स्पेराइडल कास्ट आयन फॉर्म करने के लिए सिलिकॉन जो है उसमें 2.5% वहां पे उपलब्ध होना जरूरी है। Magnesium is being more widely used and that's why it is being added as a percentage. Mg is being added in the percentage of 0.1% के हिसाब से जो है वो मैग्नीशियम वहाँ पे यूज होता है। तो उसके हिसाब से आपको जो है कास्ट आयन आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पे व्हाइट कास्ट आयन, मैलेबल कास्ट आयन, ग्रे कास्ट आयन और नॉडुलर या डक्टाइल या स्पेरल कास्ट आयन जो है यहाँ पे डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट इज मॉर्टल कास्ट आयन। मॉर्टल कास्ट आयन में जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि मॉर्टल कास्ट आयन है नेक्स्ट टाइप मॉर्टल। So chilled cast iron casting surface layer are having white ore and core is gray cast iron. But the transition region, the structure consists of both gray and white cast iron and has a graphite flakes of perlitic and secondary free cement and it is called as a mortal cast iron. मतलब जो ग्रे और व्हाइट कास्ट आयन के इन बिटवीन जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ mortal cast iron. Intermediate cooling rate of certain carbon and silicon content could not graphitize the pre-secondary cementite due to incorrect boundary formation and certain composition. That's why it is called as a mortal cast iron. Next is chilled cast iron. तो chilled cast iron में जो रहेगा chilled cast iron are iron stamping are made by casting molten metal against the chiller which results in the surface of white cast iron and chilled cast iron has surface layer of white iron while structure of the core is a gray cast iron. Normally chilled cast iron casting are obtained from casting molten metal into metal mold. So chilling to the depth of 12 mm to 30 mm is being responsible because cooling or chilling is obtained due to high thermal conductivity of metal mold. The composition of metal molten alloy is so chosen that normal cooling results of gray cast iron are a hole in section and that is why it is being used there. नेक्स्ट जो सेवेंथ टाइप जो है कास्ट आयरन का दैट इज कॉल्ड एज हाई हाई अलॉय ग्रेफाइट कास्ट आयरन। ग्रेफाइट कास्ट आयरन सीआई यहाँ पे बोलूंगा जिसमें तीन टाइप है, एनआई हार्ड, एनआई रेजिस्ट एंड सिलाल नाइक्रोसिला। सिलाल नाइक्रोसिला। तो आप यहाँ पे ये वो जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एनआई हार्ड का मतलब ये है कि इसमें 3 to 5% का नाइट्रोजन रहेगा और 1.3% का क्रोमियम वहां पे ऐड करा जाएगा। ड्यू टू दिस हार्डेबिलिटी ऑफ दिस high alloy graphite cast iron, NI's hard will be responsible here. Hardness of this NI's cast iron, hard cast iron will be in between 550 to 700 BHN. As nickel is half power of powerful graphitizer after silicon, and impact strength जो है poor है, fatigue strength भी poor रहेगा। नेक्स्ट इज Na रेजिस्ट। Na रेजिस्ट में जो है दोस्तों तो निकेल जो है 13 to 36% रहता है और क्रोमियम इज इन द रेंजेस ऑफ 1.8 to 6% which is being added to produce austenite matrix of good corrosion resistance. It is offering good mechanical properties but more expensive.
Ni is being austenitic stabilizer and mixed matrix of austenite, thus it is called as austenitic cast iron. इसको Ni resist को कहा जाता है. Properties high tensile strength के Precision नंबर जो है ब्रिनल नंबर 122 250 के हिसाब से, और जो एप्लीकेशन है Ni resist का गियर पंप्स में, पंप्स है या वॉल्व्स में, पार्ट्स ऑफ स्टीम्स एंड अकोस्टिक इंडस्ट्री में, फर्नेस पार्ट में, सिलेंडर में इसका यूज जो है वो होता है. और लास्ट जो है नाइक्रोसिलाल का हिसाब जो है, सिलाल ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन के हिसाब से बोले तो इनगट मोल्ड, सिलेंडर हेड्स, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स, एल्यूमिनियम क्रूसिबल्स, रिटॉर्ट्स, ग्लास मोल्ड्स और गैस टरबाइन में जो है इसका यूज होता है. तो ब्रॉडली स्पीकिंग में हमने जो अलग अलग जो टाइप है कार्बन के वो यहाँ पे देखे. तो नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे तो रॉड कास्ट आयरन और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस रहता है. तो रॉड कास्ट आयरन जो रहता है प्योरेस्ट कंटेंट्स up to 0.25% of carbon, but cast iron is in the ranges of 2 to 4%. मेल्टिंग पॉइंट जो है कास्ट आयरन का 1200 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से रहता है, बट इज इन द स्टील ऑफ 13 to 1400 डिग्री सेल्सियस. ये जो है कास्ट आयरन हार्डन या हीटिंग एंड सडन कूलिंग वहां पे किया जा सकता है. स्टील के हिसाब में भी वो सेम चीज हो सकती है. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कास्ट आयरन की 6.3 to 7.1 के हिसाब से वहां पे हो सकती है, बट फॉर स्टिल इट इज इन बिटवीन 4.7 to 25.2 के हिसाब से वहां पे होती है. अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है कास्ट आयरन की 1.26 to 1.57 टन के स्क्वायर पर सेंटीमीटर के हिसाब से होती है, एज कम्पेयर टू स्टील का जो है सबसे ज्यादा है, दैट इज 5.51 to 11.02 टन पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वहां पे उपलब्ध होता है. तो आपको जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन एंड स्टील का जो है कंपैरिजन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन है. और उसमें जो है दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का रेंज जो है कास्ट आयरन और स्टील के हिसाब से, और अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ जो है कास्ट आयरन और स्टील का, आपको ये ध्यान में रखना है. इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू द टाइप्स ऑफ various types of cast iron and the basic difference between cast iron and steel? Please reply in the chat box. Yes, no. Yes, no. Okay, we'll move further. तो यहाँ पे रॉड कास्ट आयरन और उसमें रस्टिंग, मैलेबिलिटी, रिएक्शन टू सडन लॉक और वेडिंग जो है उसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन है, और आप उसको इजीली ट्रेस कर सकते हो. यूसेस जो है कास्ट आयरन का वाइट पाइप्स में रहता है, सीवर्स में रहता है, ड्रेन पाइप्स में रहता है, whereas steel is being used in reinforcement of RB and RCC. बाकी लैम्प पोस्ट, कॉलम्स, रेलिंग्स में यूज होता है कास्ट आयरन, और इसमें कटलरी, फाइल्स, मशीन टूल्स में यूज होता है. तो कास्ट आयरन का हिसाब जो है इट इज बीइंग नेम्ड फॉर दोस फेरस मेटल्स कंटेनिंग मोर देन 2% का अपन यहाँ पे हिसाब ले रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज बीइंग मेंशन. तो कंपोजिशन में कार्बन जो है 2.5 to 3.7% रहता है. Silicon is in the ranges of 1% to 3%. Manganese is in from 0.5 to 3%. 1%. Phosphorus is from 0.1 to 0.9%. And sulfur is in the ranges of 0.07 to 0.107%. ये brief history है, इतना important नहीं है, but we will just go through. तो मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है दिस इज द कपोला फर्नेस. कपोला फर्नेस में जो रहता है कोक आयन और लाइमस्टोन जो है ऊपर की तरफ से भेजा जाता है, और गैस, वेस्ट गैस यहाँ से निकाला जाता है. इन बिटवीन लेयर्स और आयन कोक यहाँ पे फॉर्म रहता है. ये जो क्लोज रहता है दैट इज एनक्लोज इन रिफ्रैक्टरी लाइन शीट्स स्टील सेल, और इसके हिसाब से ये बॉटम में जो है वहां पे हीटअप करा जाता है इसको साइड वॉल से, और वहां से लास्ट में मॉल्टन स्लैग आ जाता है, वेस्ट मटेरियल हॉट एयर ब्लोन हो जाता है, और बॉटम में से जो है मोल्टन आयन जो है यहाँ पे डाउन होता है. दिस इज द सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द कास्ट आयन यूजिंग द कपोला फर्नेस. ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों. और वही मेंशन यहाँ पे करा हुआ है, दैट इज
Bell charging mechanism is being used. Coke, iron ore, and limestone is being poured from the top with help of bell charging mechanism. That combination is being spread over the layers of iron ore and coke from our side. It is being getting heated, and the whole structure is being contained in refractory line steel shell. The molten slag is being formed. It is being removed with help of side tap, and at the bottom molten iron is being created and it is being taken out from there. This is the simple manufacturing of cast iron. तो वो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन, वहां पे मेंशन जैसा था उसके हिसाब से ही अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो कूलिंग रेट का व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कूलिंग रेट ऑन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन? स्लो कूलिंग रेट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड लो हार्डनेस। रैपिड कूलिंग रेट प्रमोट्स द कार्बाइड्स विद हायर हार्डनेस। मतलब यदि उसका रैपिड कूलिंग रेट रहेगा, then hardness will be more and the formation of carbide will be there. But if the slow cooling rate will be there, then formation of graphite is highly probable and low hardness will be responsible. मतलब जब सीमेंटाइड रहता है एक उस रूम टेम्परेचर पे, तो उसका जो हार्डनेस है मोर रहता है। यदि परलाइट रहेगा देन इट विल हैव लो हार्डनेस। तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर ध्यान देना है। थिक सेक्शन कूल्स स्लोली व्हाइल थिन सेक्शन कूल्स डाउन क्विकली। जो थिक सेक्शन रहेगा वो स्लोली कूल होगा, थिन सेक्शन जो है वो क्विकली ये हो जाएगा। तो एप्लीकेशन जो है इनएक्सपेंसिव है, ड्यूरेबल है, इजीली कास्टेबल है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से जो है वहाँ पे कास्ट आयरन का जो है वहाँ पे यूज होता है। तो स्टोर्स, फायर बैग्स, व्हीकल इंजिन्स, डेकोरेटिव पर्पज में यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे स्टोर्स का एग्जांपल है, कुकर वेयर में है, कार इंजन के शेप इसमें, गेट डिजाइन मेड फॉर कॉलम्स में, डेकोरेटिव आइटम जो है उसमें जो है कास्ट आयरन का यूज होता है। डिसएडवांटेज जो रहता है कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन वेट का हिसाब है, ब्रिटलनेस है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हीट है। और ये जो चीजें हैं ब्रिटलनेस के हिसाब से, दिस इज बिंग schematic represent that failure is being happening like that। तो आपको उसको ध्यान वहां पे देना है। तो इजीली जो स्ट्रक्चरल यूजेस है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस तरीके से उसमें यूज होता है, ब्रिजेस में रहता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में उसको यूज करा जा सकता है। तो ये स्पेसिफिक जो एग्जांपल्स है उसके यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वहां पे यूज करा गया है। हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नाउ, तो जो कास्ट आयरन है यदि हम नॉर्मल फेज में उसको यूज करें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट कास्ट आयरन? मतलब यदि हम इसको नॉर्मल तरीके से यूज करें तो क्या उसका इफेक्ट हो सकता है? आपको पता है यदि अलग एलिमेंट हम ऐड नहीं करेंगे तो स्टील कास्ट आयरन का जो प्रॉपर्टीज वो नहीं होगा। तो इसके लिए उसमें कुछ अलग एलिमेंट जो है वो डालना जरूरी है। तो ऑटोमेटिकली उसमें जो पहला जो है दैट इज ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज का यूज ये है दोस्तों कि विद हेल्प ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज इज बीइंग एडेड फ्रॉम अप टू या बिलो 0.75% के हिसाब से। और इसमें क्या होता है कि कास्ट आयरन ऐड हो जाने के बाद उसमें सिंपल वो कास्ट आयरन को हार्ड एंड ब्रिटल बनाता है एंड इट शुड बी केप्ट बिलो 0.75% और बिलो सो। तो दैट इज बिंग इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर कास्ट आयरन को ब्रिटल और हार्ड बनाता है, सेम थिंग। इट डज नॉट अलाउ स्मूथ कूलिंग इन द सैंड मोल्ड्स एंड इट presence causes rapid solidification of cast iron and ultimately results in the blowholes and sand holes। Though this is being the responsibility of sulfur। और ये जो है ऑटोमेटिकली सल्फर कंटेंट जो है मस्ट बी केप्ट बिलो 0.10% के हिसाब से वहां पे मेंशन होना चाहिए और उसके हिसाब से ही वहां पे चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन जो का जो यूज है, दैट सिलिकॉन इज बीइंग यूज बिलो 2.5% के हिसाब से एंड इट इज बीइंग द कंबाइंड part of iron and forms solid solution। It removes the combined carbon from the graphite form and it is usually less than 2.5%।
नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो 0.3 to 1% के हिसाब से यूज होता है। इट इंक्रीजेस द फ्लूइडिसिटी विच इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द कास्टिंग द कास्ट आयरन इन द सैंड मोल्ड्स एंड the amount is more than 0.3% resulting in the cast iron or lacking of toughness and workability, and the some time is kept for that values where it is being uh, used for very thin type of castings. These are the important things that you have to remember for various alloying elements in which manganese, sulfur, silicon, phosphorus are being measured here. तो उसके हिसाब से जो है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन का जो है उसमें कौन कौन से जो पार्ट्स ऐड करने से क्या क्या उसमें होता है तो यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो ऑटोमेटिकली दो ही कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन है, सिलिकॉन और मैग्नीज, और डक्टाइल कास्ट आयरन में मैग्नीज, निकेल और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे ऐड है। तो फॉर्म एंड कंडीशन जो है ग्रे कास्ट आयरन कास्टिंग से ही होता है, व्हाइट कास्ट आयरन कास्टिंग से होता है, ये सब जो फॉर्मेशन जो होता है कास्टिंग से होता है। एल स्ट्रेंथ जो है ग्रे कास्ट आयरन की लो है, व्हाइट कास्ट आयरन की लोएस्ट है, मैलेबल और डक्टाइल कास्ट आयरन की हाईएस्ट एल स्ट्रेंथ वहां पे। टेंसिल स्ट्रेंथ जो है सिर्फ व्हाइट कास्ट आयरन की लो है, बाकी वाली सब हायर रेंज पे। डक्टिलिटी जो है ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन की लोअर एंड लोएस्ट है, बट मैलेबल और डक्टाइल कास्ट आयरन की हायर है। हार्डनेस जो है ग्रे कास्ट आयरन एवरेज है, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन लोएस्ट, लो एंड मैलेबल कास्ट आयरन लोएस्ट है, हाई जो है व्हाइट कास्ट आयरन की। यूजेस जो है इसमें इंजन, सिलेंडर ब्लॉक्स, फ्लाईव्हील्स, गियर्स, मशीन टूल बेसेस जो है उसके लिए ग्रे कास्ट आयरन वहाँ पे यूज होता है। व्हाइट कास्ट आयरन जो है बेरिंग सर्विसेज के लिए यूज होता है। मैलेबल कास्ट आयरन एक्सेल बेरिंग के लिए होता है, ट्रक व्हील के लिए होता है, कॉलम्स एंड आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर्स के लिए होता है। और डक्टाइल कास्ट आयरन जो है गियर्स, कैम शाफ्ट्स एंड क्रैंक शाफ्ट्स में जो है डक्टाइल कास्ट आयरन को यूज करा जाता है दोस्तों। इज इट क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? If yes, please type in the message box. Please reply in the chat box. Okay. तो क्लासिफिकेशन जो है ऑटोमेटिकली जैसे हमने पहले वहां पे देखा था, व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन एंड मैलेबल कास्ट आयरन। तो व्हाइट कास्ट आयरन जो है it is iron carbon alloy having more than 2.1% of carbon. The carbon का combined फॉर्म में और सीमेंटेड फॉर्म के हिसाब से होता है। कंपोजिशन में 2.5% कार्बन है, मैग्नीज 0.4% है, क्रोमियम 70% है, सिलिकॉन 1.3% है, निकेल एंड कॉपर 1.5% है, फॉस्फोरस 0.5% है, सल्फर 0.15 है, मोलिब्डेनम 0.55% के हिसाब से वहां पे मेंशन है। तो हार्डेस्ट है, बियर रेजिस्टेंस है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस है। हार्डनेस ब्रिटलनेस जो है वो 375 to 600 के हिसाब से, टेंसिल स्ट्रेंथ जो है 20,000 to 70,000 पास्कल पीएसआई के हिसाब से, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 2 लाख से 2.5 लाख के हिसाब से। तो एक्सट्रीमली ब्रिटल है और लैक ऑफ मशीनबिलिटी। व्हाइट कास्ट आयरन इज हैविंग लिमिटेड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में उसको अवेलेबल है। तो व्हाइट कास्ट आयरन को ही मैलेबलाइज करने से मैलेबल कास्ट आयरन वहाँ पे तैयार हो जाता है और लाइनर्स में यूज होता है, बॉल मिल्स में होता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्राइंग डाइस में होता है, एक्सट्रूजन नोजल्स में होता है और फर्नीचर्स में उसको यूज होता है। उसके जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे दिखाए गए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट इज ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में जो है फ्लेक्स ऑफ ग्रेफाइट एम्बेडेड स्टील्स इन द मैट्रिक्स व्हिच हैव शो द ग्रे ब्लैकिश कलर फ्रैक्चर ड्यू टू ग्रेफाइट। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लैक शेप्स है, दैट इज द ग्रेफाइट फ्लेक्स एंड ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रे कास्ट आयरन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील मैट्रिक्स और साइज एंड कैरेक्टर ऑफ ग्रेफाइट। उसके हिसाब से कार्बन कंटेंट यहाँ पे 2.4 to 3.8 है, सिलिकॉन 1.2 to 3.5% है, मैग्नीज 0.5% है, सल्फर 0.06 to 0.12 है, और फॉस्फोरस जो है 0.1 to 0.9 के हिसाब से वहां पे। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, गुड कास्टेबिलिटी और गुड मशीनबिलिटी, दैट आर बीइंग द प्रॉपर्टीज एज डिस्कस अर्लियर। हमने ये डिस्कस करा था, फिर से आप यहाँ पे
देख रहे हो। गुड वियर रेजिस्टेंस है, हाई डैम्पिंग कैपेसिटी है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, हाई थर्मल कंडक्टिव, गुड रेजिस्टेंस इन द एटमॉस्फेरिक और नॉच इंसेंसिटिव वहाँ पे होता है। तो एप्लीकेशन जो है इंटरनल कंबशन इंजन में होता है, कुकिंग कास्ट आयरन कुकिंग वेयर में होता है, डिस्क ब्रेक ऑफ कार में होता है, डेकोरेटिव पैटर्न में होता है, पंप होसिंग्स में होता है, इंटरनल कंबशन इंजन में जो है वहाँ पे वो यूज होता है। नेक्स्ट जो है मैलेबल कास्ट आयरन है। मैलेबल कास्ट आयरन इज बीइंग यूज्ड मेटास्टेबल कार्बाइड स्ट्रक्चर वहाँ पे होते हैं, और ये जो ब्लैक पोर्शन यदि आप देख रहे हो, दिस ब्लैक पोर्शन आर द मेटास्टेबल carbide in perlite matrix. Graphite is in nodular form and produced by heat treatment of white cast iron. Graphite nodules are in the irregular shapes और उसमें कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सल्फर जो वही उपलब्ध वहाँ पे रहता है। प्रॉपर्टी जो है ये सिमिलर डक्टाइल कास्ट आयरन से है। शॉक रेजिस्टेंस इसका अच्छा है, गुड डक्टिलिटी है और मशीनेबिलिटी जो है यहाँ पे गुड है। और एप्लीकेशन जो है रेल ट्रैक्स, पाइप फिटिंग्स, स्टील कंपोनेंट्स इन कार, व्हील्स जो है, पावर ट्रेन जो है उसमें जो है यहाँ अपना वो मैलेबल कास्ट आयरन जो यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट इज डक्टाइल या नोडुलर और स्पेरोइडल कास्ट आयरन को बोलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से जो है स्पेरोइड जो है, ग्रेफाइट जो स्पेरोइड या नोडल्स के हिसाब से यहाँ पे उपलब्ध रहता है, इसलिए इसको जो है डक्टाइल, स्पेरोइडल और एचजी कास्ट आयरन इसको बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जो है यहाँ पे सल्फर वहाँ पे उपलब्ध वहाँ पे रहता है। प्रॉपर्टीज जो है स्ट्रेंथ हायर देन ग्रे कास्ट आयरन है, डक्टिलिटी 6% के हिसाब से लो कॉस्ट है और मशीनेबिलिटी इज ग्रेटर देन स्टील, दैट इज द ईएचजी कास्ट आयरन। और इसका जो एप्लीकेशन है स्पिंडल्स में, डिस्क ब्रेक्स में, कैंकशाफ्ट में, ऑयल वेल पंप्स में, पाइप्स में, ट्रैक्टर्स में जो है यहाँ पे इसका स्पेरोइडल कास्ट आयरन का यूज वहाँ पे होता है दोस्तों। तो इसके साथ आज हम कास्ट आयरन जो सेकंड हाफ था, थर्ड यूनिट का आयन एंड कार्बाइड डायग्राम का, यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। और स्टील जो था दैट वाज यूनिट नंबर 5, तो हमने ऑलरेडी व्हाइल टेकिंग आयन एंड कार्बाइड डायग्राम में वहाँ पे हमने वो कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर 4 जो है ट्रीटमेंट ऑफ स्टील्स या हीट ट्रीटमेंट वो हम देखने वाले हैं। मतलब कि हमारे 2 यूनिट अभी बचे हुए हैं, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज यही पे स्टॉप करेंगे। इज इट ओके टू यू ऑल ऑफ यू? Is it okay to all of you? Please reply in the chat box. Okay, we'll stop here.